students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will start the history book chapter 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947. Children, नेशनल मूवमेंट्स हुए बहुत सारे 1870 से 1947 के बीच में जब ब्रिटिश रूल था, और उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट करने पड़े हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो इस ड्यूरेशन में कौन कौन से मूवमेंट हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन, ये वाला चैप्टर जो है वो अभी आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा, 6th यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा। उसका सिलेबस जो है वो सिर्फ आपका 8th चैप्टर जो है वही आएगा हिस्ट्री का, और जो सिविक्स है उसका फैसिलिटीज़ वाला चैप्टर ही आएगा यूनिट टेस्ट। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी अबाउट द नेशनल मूवमेंट्स बिटवीन द 1870s to 1947. In the previous chapter, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, changes in the lives of peasants and tribals, educational changes in the 19th century, debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath, the decline of crafts and growth of industries. On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? चिल्ड्रन, देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी सारी टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया, सारे राजाओं के राज्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया, नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस लागू किए, नए नए कानून बनाए। पीजेंट्स और ट्राइबल की जो लाइफ थी पूरी तरह से चेंज हो गई, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 19th सेंचुरी तक एजुकेशनल चेंजेस उन्होंने बहुत सारे कर दिए। वीमेन की स्थिति में भी जो थे वो कई चेंजेस हुए, उसको सुधारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। जो कास्ट सिस्टम था उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। इसके साथ साथ जो रिलीजियस रिफॉर्म थे, सामाजिक और रिलीजियस जो रिफॉर्म थे वो भी हुए। 1857 का रिवोल्ट भी हमने पढ़ा, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करी वो भी हमने पढ़ा, और जो हमारे क्राफ्ट सिस्टम था वो सब डेक्लाइन हुए। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इश्यूज़ हुए। तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश रूल में जो हमारे इंडियंस थे क्या वो सेटिस्फाई थे ये सारी चीज़ों को लेकर? बहुत सारे ग्रुप्स और क्लासेस जो थे वो इन सारी चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रही थी? कई लोग जो हैं वो बहुत कम लोग थे हालांकि, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, बट बहुत सारे लोग थे जिनके दिलों में क्रोध बहुत ज़्यादा भड़क रहा था और वो ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। द एवो मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल to ask crucial questions. What is this country of India and for whom is it meant? The answer that gradually emerged was India was the people of India. All the people, irrespective of class, color, caste, creed, language or gender, and the country, its resources and systems were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control power the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. Note the name Pune Sarvajanik Sabha. The literal meaning of Sarvajanik is of
or for all the people. Serve equals to all plus janik, that means of the people, that means for all people. Though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goal of all the people of India, not those of any one region, community or class. They worked with the ideas that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitude of the ब्रिटिश इन इंडिया। हमारा जो देश है, हमारे देश में जो लोग थे वो, हमारा देश किसका देश है? हमारा देश भारत के लोगों का देश है। और ये बात धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही थी। हमारे देश में क्लास, कलर, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिफरेंसेस हमारे देश में पाए जाते थे। और जो रिसोर्सेज सिस्टम है वह भी हमारे देश में पाए जाते थे। तो हमारा देश जो था वो पहले ही यूनिटी तो थी, लेकिन बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट चीज़ों को लेकर के इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर करके उन्होंने हमारे देश को टेक ओवर कर लिया। अब धीरे धीरे करके जब 1850 तक तो बहुत सारे छोटे छोटे जो थे वो मूवमेंट्स हुए, लेकिन 1857 में जब बड़ा मूवमेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स जो थे वो सचेत हो गए। और इसके बाद 1870 से 1880 के बीच में जो था कुछ स्पेशल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। कुछ लोगों ने एसोसिएशंस बना लिए बहुत सारे, उनमें से खास थे वो थे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भी जो एसोसिएशंस बने वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बने कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं और उन्हें अब हमारे देश में नहीं इस तरह से करना चाहिए। हमारे देश का जो रूल है वो गलत तरीके से वो कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा का मतलब था कि जो आम लोगों की जो सभा होती है वह। अब हमारे देश के जो कुछ लोग थे वो जागरूक हो गए और उन्होंने गोल बना लिया कि हमारा जो देश है वो सोवरेन है और यहाँ पर किसी और का शासन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो लोगों के मन में विद्रोह की भावना क्यों हो रही थी धीरे धीरे, तो इसका कारण था कि सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिशर्स के जो रूल था उससे हमारे देश के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। स्पेशली 1870 से 1880 के बीच में वो 2-3 जो ऐसे कानून लाए जिससे कि हमारे देश की जनता था वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गई। एक रूल उन्होंने लाया 1878 में, वह था कि जो इंडियंस थे वो अब आर्म्स नहीं रख सकते थे। और इसी के साथ एक और उसी साल उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में कुछ भी प्रेस में छापने की कोशिश करता उसकी प्रेस को बंद करवा दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मन में लोगों की विद्रोह की भावना पनपा रही थी, चिंगारी उनके मन में
भड़क रही थी। 1883 में फिर इल्बर्ट बिल लाया गया। उस इल्बर्ट बिल के अनुसार जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में मतलब जो इंडियंस थे, यदि कोई विवाद होता तो यूरोपियन पर्सन्स जो होते थे, ब्रिटिश और यूरोपियन, वो ट्रायल कर सकते थे। मतलब इक्वली उनके साथ जो है वो ट्रायल हो सकता था। जजेस जो ब्रिटिश और इंडियन जजेस रहेंगे कोर्ट में, इस तरह से वो बिल लाया गया। बट उन्होंने जो अपोजिशन थी उन्होंने उसका फोर्स विरोध किया, और गवर्नमेंट ने उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वाइट अपोजिशन थी, मतलब वहाँ पर जो ब्रिटिश के जो और ऑफिसर्स थे उन्होंने उसका विरोध किया और उन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे भारत में, वो हाईलाइटेड हो गए कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, गोरे और काले का भेद कर रहे हैं, क्योंकि वो जजेस को हमारे यहाँ अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे उनके खिलाफ में लोगों को प्रेरित कर रही थी कि ये सारी चीज़ें नहीं उनको करनी चाहिए। चिल्ड्रन, इसके बाद ये पेज नंबर आपका 110 तक मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद 111 से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आपको यहाँ तक अच्छी तरह से रीड करना है। डिफरेंट जो टफ वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आपको फाइंड करनी है। ओके।